So welcome guys, welcome to my first class of syllogism, and it's the first class of reasoning. It is not my first class, but it's the first class of reasoning, and today's topic is syllogism, and it's a very important topic for any kind of banking exam, whether it is PO or clerk. Around 5 marks you can get through syllogism, and with my process, the process is through Venn diagram. You can score 5 out of 5 and with a very less time. So let's see what is the process of doing this syllogism. Okay, so here we can I explain you that here the three process mainly, and one is included in nowadays. It's, you can say it's a trend. So first is all रहने से you should do the Venn diagram like this. If all A is B, then the Venn diagram is should like all A is B. After that, sum A is B. अगर ऐसा रहता है तो आपको Venn diagram कैसे बनाना होगा? Sum A is B. So here it is A and B, and some portion of A is B. This is the number 1 and this is number 2. Now number 3 वाला जो portion है वो कैसे होता है? That is no. Number 3 consists no. That no A. That no A is B. नो ए इज़ बी रहने से क्या होगा? ए अगर ये है, बी अगर ये है, तो नो ए इज़ बी. हेयर इज़ ए एंड दैट इज़ बी. नो ए इज़ बी. नाउ गो फॉर द ट्रेंड वन. कौन सा ट्रेंड में चल रहा है देख लीजिए. दैट इज़ वेरी फ्यू. वेरी फ्यू कैसे हम लोग बनाएंगे? मान लीजिए जो क्वेश्चन है दैट इज़ वेरी फ्यू ऑफ ए इज़ बी. सो वेरी फ्यू मतलब कुछ ही पोर्शन ए का जो है दैट इज बी. सो इफ इट इज ए एंड इट इज बी, सो सम पोर्शन ऑफ ए इज बी. सो दैट इज द फोर काइंड ऑफ वेन डायग्राम you should draw. Now what about the options? Now the option हम लोग का 5 ऑप्शन रहते हैं. That is only only 1 follow, only 2 follow, either 1 2 follow, either neither 1 not to follow, and none of this. So guys, please keep it mind that it should be varied. ठीक है, ऑप्शन का वेरिएशन हो सकते हैं. ऑप्शन का वेरिएशन हाउ कुड यू नो? थ्रू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. Through a lot of practice you should know what are the variation in this option. After that, let's see the example number 1, and here the two statement is given, that is 1 2, and in two statement you should decide whether this conclusion are right or wrong, whether the 2 is wrong, whether the 2 is right, anything can be. So let's see how to do this syllogs. Okay, so number 1, all pencils are pens. All pencils are, sorry wrong हो गया, एक मिनट. all बोला है ना, so all pencils are pens. All pencils are pens. Now some erasers are pencils. So some portion of eraser are pencil. Now the two conclusion given, that all eraser are pens, some pens are eraser. Now all eraser are pens. Number 1, all eraser are pens. हो रहा है क्या? all eraser are pens. some portion हो रहा है but all नहीं हो रहा है. So it's the wrong conclusion. And number 2 conclusion, some pens are eraser. some pens are eraser. some pens तो eraser का हो ही रहे हैं. some pens का ये portion that is eraser का है. So some portion of pens are eraser. So conclusion 2 is right. Okay, so next example देख लेते हैं. next example statement 1 क्या है? some fruits are jams and some jams are packet.
ओके गाइस, सो आप ये लोग थोड़ा आप लोग थोड़ा इसको ट्राई कीजिए, फिर हम बता रहे हैं, जल्दी से ट्राई कीजिए। ओके, नाउ आई विल सी क्या होगा। सम फ्रूट्स आर जैम्स, सम फ्रूट्स some fruits are jams. Some fruits are jams. उसका अर्थ क्या है? Some jams are packet. Some jams are packet. ठीक है, so some fruits जो है सम फ्रूट्स जो है वो जैम है और सम जैम जो है पैकेट। सो यहाँ पे कंक्लूजन क्या है? नो फ्रूट इज पैकेट, नो फ्रूट इज पैकेट। सो देखिए इसका ये एक डायग्राम हो गया, और भी तो एक डायग्राम हो सकता है, पैकेट तो पूरा हो सकता है। मान लीजिए ये है फ्रूट दैट इज जैम और सम जैम इज पैकेट, ठीक है, तो ऐसा भी तो हो सकते हैं, ऐसा वाला वेन डायग्राम, ठीक है। सो इसमें क्या होगा? नो फ्रूट्स इज पैकेट बोले हैं, नो फ्रूट्स इज पैकेट तो नहीं हो रहा है ये, तो ये भी क्या होगा? रॉन्ग। एंड आफ्टर दैट कंक्लूजन नंबर 2 क्या है? ऑल पैकेट्स आर फ्रूट्स, ऑल पैकेट्स आर फ्रूट्स, तो ये भी नहीं हो रहे हैं, सो दैट कंक्लूजन इज ऑल्सो रॉन्ग। सो नाइदर वन नॉट टू फॉलो, ये वाला केस ये हो गया। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है। ऑल लीडर्स आर ह्यूमंस, ऑल लीडर्स all leaders are humans, all leaders are humans। and after that क्या बोला है? all humans are good। now all humans are good, ठीक है, ये हो गया इसका वेन डायग्राम। अब देख लेंगे कंक्लूजन क्या है। ऑल लीडर्स आर गुड, सो ऑल लीडर्स आर गुड, फॉलो। नो ह्यूमंस कैन बी लीडर, नो ह्यूमंस कैन बी लीडर, तो ह्यूमन का तो ये पोर्शन तो जो है वो तो लीडर हो रहे हैं, सो ये कंक्लूजन कैसे राइट होगा? सो दैट इज रॉन्ग। सो ओनली कंक्लूजन वन, ओनली वन फॉलो, ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 3। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है? ऑल पेटल्स आर फ्लावर, ऑल पेटल्स आर फ्लावर। चलिए इसके वेन डायग्राम बनाते हैं। अच्छा, ये अगर हम नेक्स्ट पेज में बनाएंगे, आप लोग ये क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, क्योंकि इसका वेन डायग्राम जो है थोड़ा बड़ा बनेगा, क्योंकि इतना कंक्लूजन है, इतना स्टेटमेंट भी है। सो आई विल डू इट इन द नेक्स्ट पेज, ओके, विच इज़ एब्सोल्युटली ब्लैंक। सो देख लीजिए इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। सो ऑल पेटल्स आर फ्लावर, ऑल पेटल्स आर फ्लावर। नाउ क्या बोले हैं? सम फ्लावर्स आर रोजेस, सम ऑफ दिस फ्लावर्स आर रोजेस। आफ्टर दैट क्या है? सम रोजेस आर रेड, सम रोजेस आर रेड। उसका बाद ऑल रेड आर कलर। नाउ दिस ऑल रेड आर कलर, ऑल रेड आर कलर, ठीक है। सो दिस ऑल रेड आर क्या हो रहे हैं? कलर। अब इसका देखिए
कंक्लूजन क्या दिया हुआ है? अच्छा, इसका और एक केस तो हो ही सकते हैं, जैसे ये आप लोग बना लीजिए, फिर हम इसको मिटा देंगे. ड्यू टू लैक ऑफ प्लेसेस आई हैव टू डू दिस. आई एम absolutely sorry for that, but I have to do this, otherwise I will not get the enough place for doing this one. So now the all petals are flowers. all petals are all petals are flower. now क्या बोला है? some flower are roses. यहाँ पे थोड़ा बहुत all petals are flower. ये ले लेते हैं, आप लोगों को थोड़ा देखने को सुविधा होगा. all petals are flowers. फिर क्या बोल रहे हैं? some flower are roses. some flowers are roses. after that क्या है? some roses are red. some roses are red. some roses are red. all red are color. all red are color. now the conclusion given, देख लेते हैं conclusion क्या था. conclusion given, some petals are not roses, some flowers are some petals are not roses, some flowers are color, no flowers are color. पहले ये देख लेते हैं. some petals are not roses, some petals are not roses. ठीक है, पहला वाला पिक्चर हम जो बनाए थे उसमें देखा था क्या हम लोग? some petals are not roses, but इधर क्या है? some petals are roses. so conclusion 1 should not be follow. conclusion 1 क्या होगा? follow नहीं होगा. अब conclusion 2 क्या है? some flower are color. some flowers are color. देख लेते हैं. some flowers are color. तो ये conclusion absolutely क्या है? right है. अब कंक्लूजन नंबर 3 क्या है? नो फ्लावर इज कलर. तो सम फ्लावर कलर होगा अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट, हम जो दूसरा जो वेन डायग्राम बनाए हैं उसके हिसाब से सम फ्लावर्स का कलर होगा. बट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट डायग्राम नो फ्लावर कैन बी कलर, इट ऑल्सो कैन बी. सो यहाँ पे ईदर 2 और 3 फॉलो. ईदर 2 और 3 फॉलो. अब देख लेते हैं एग्जाम्पल 5. ठीक है, इसमें पॉसिबिलिटी वाला केस हम एक तो ले लिए हैं. जो पॉसिबिलिटी वाला केस में आप लोगों का बहुत प्रॉब्लम रहता है, सो पॉसिबिलिटी वाला एक तो केस हम ले लिए हैं. सो इसका भी हम जो करेंगे, जो बनाएंगे वेन डायग्राम इन द नेक्स्ट पेज में ही हम बनाएंगे. तो पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं. ऑल चाउमीन्स आर पास्तास, नो पास्तास इज एग, ऑल एग्स आर हेन्स, नो हेन इज चाउमीन. देखिए इसमें नो का भी है, पॉसिबिलिटी का भी है, तो इसमें आप लोगों को बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलेगा अगर आप लोग ध्यान से सीखिएगा. तो कंक्लूजन क्या है? नो हेन इज चाउमीन एंड ऑल पास्तास बीइंग हेन इज अ पॉसिबिलिटी. सो व्हाट अबाउट द वेन डायग्राम देख लीजिए. इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? सो इसका भी 3 वेन डायग्राम बन सकते हैं. पहले क्या है? पहले क्या है? ऑल चाउमीन्स आर पास्तास. सो ऑल चाउमीन आर पास्तास. ठीक है, ऑल चाउमीन आर पास्तास. फिर नो पास्तास इज एन एग. फिर नो पास्ता इज एग. नो पास्ता इज एग. उसके बाद क्या है? ऑल एग्स आर hen. नाउ ऑल एग्स आर
hens। ठीक है, ये एक तो वेन डायग्राम इसका बन सकता है। दूसरा वेन डायग्राम कैसे बन सकता है, आप लोग ये कॉपी कर लीजिए, क्योंकि हमको ये मिटाना पड़ेगा, फिर हम दूसरा बनाएंगे। इसका 3 जो होता है वो वेन डायग्राम बनेगा, 3 वेन डायग्राम बनेगा। एक ही स्टेटमेंट का 3 वेन डायग्राम बनेगा, क्योंकि ये अगर बनाएंगे तो क्या होगा, आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, फिर आप एक ही बार में आप ये सब बना सकते हैं। सो देख लीजिए नेक्स्ट वेन डायग्राम कैसे बनेगा। ऑल चाउमीन आर pastas। नाउ नो एग इज पास्ता, सो एग को इधर रख दीजिए अलग करके। और ऑल एग इज क्या है, हैन। सो ऑल एग इज हैन, तो ये तो एक ग्रुप हो ही सकते हैं, ऑल एग इज हैन। ठीक है, ये दूसरा वेन डायग्राम है आप लोगों का, आप लोग भी बना दीजिए इसको। ओके, फिर हम तीसरा वेन डायग्राम बनाएंगे। तीसरा वेन डायग्राम में क्या है, वही बनेगा, चाउमीन, ऑल चाउमीन आर pastas। नाउ नो एग इज pastas, एक को अलग कर दीजिए। आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे जैसे हम पहले दिखाए थे। सो नो एग इज pastas एंड ऑल एग इज hen। सो ये और एक, ठीक है। सो दैट इज द नंबर 3 वेन डायग्राम। बना लीजिए इसको, आराम से बनेंगे। ओके, अब देख लेते हैं व्हाट आर द कंक्लूजन। नो hen इज चाउमीन, ठीक है, नो hen इज चाउमीन। सो इसका क्या होगा, नो hen इज चाउमीन, क्योंकि इसमें देखिए हो रहे हैं सम ऑफ द hen इज चाउमीन हो रहे हैं, तो क्या होगा, कंक्लूजन जो 1 होगा वो हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। ऑल पास्तास बीइंग hen इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल पास्तास बीइंग hen इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल पास्ता बीइंग hen, हम जो 2 नंबर का जो हम लोग जो वेन डायग्राम बनाए थे उसको देखिए, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा 2 नंबर को हम कैसे बनाए थे। और एक बार हम बना देते हैं 2 नंबर का। ऑल चाउमीन इज pastas, no egg is pasta, all egg is hen। अब देखिए इसका कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, ऑल पास्ता बीइंग hen इज अ पॉसिबिलिटी। सो ऑल पास्ता बीइंग hen इज अ पॉसिबिलिटी विच इज एब्सोल्युटली राइट। सो ये था आपका ज़बरदस्त सेशन ऑफ। सो गाइस दैट इज ऑल अबाउट सिलोग्स।